आपदा में अवसर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। अब सवाल सरकार पे भी उठते हैं कि इस आपदा के अवसर बनाने वालों पे कैसे कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सैयद इम्तियाज अली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। और दूसरे पैनलिस्ट जुड़े हैं बबलू कुमार जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के पटना, बिहार पटना से। और आज बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू जी। आज बात करेंगे कि इस आपदा में अवसर बनाने वाले का पे सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस आपदा में अवसर बनाने वाले बहुत से फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, वीडियो बना के चल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने सपने दिखाती है, ख्वाब दिखाती है और उस पे पैसा लोगों का ऐंठती है, बाद में चली जाती है। इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वकील साहब को आमंत्रित करूंगा कि वकील साहब एक चीज बताइए। बहुत सी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो चैन बनाने का काम करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं MLM। चूंकि MLM इंडिया में विदाउट एनी प्रोडक्ट इलीगल है, तो लोगों ने उसका नाम चेंज करके बोल दिया ये IT बेस्ड कंपनी है, और उसमें वो इस तरीके का प्रोडक्ट बताती हैं कि मैं फेसबुक से बड़ा, यूट्यूब से बड़ा, गूगल से बड़ा ऐप लेके आ रहे हैं, बहुत काम चल रहा है, बहुत प्रोडक्ट है, 212 कंट्री में है, 7 लाख लोगों ने ज्वाइन कर लिया है विदाउट एनी प्रोडक्ट। तो इसमें हम जानेंगे क्या है ये चीजें, इसको कैसे बचा सकता है, और क्या ये वाकई में फ्रॉड है या स्कैम है। Let me clarify that all these things are governed with the IT Act. So IT Act is a very new act which has not came into existence long back. Recently, so there are certain things which are still required to be implemented, which are still required to be changed. There should be some teeth with which we can utilize those teeth to apply on those companies and those persons who are cheating with the people particularly and individually, and as a large group are being victim of that. So first of all, we must give a representation to the government of India, so that the government of India could make certain arrangements and legislation, through a legislation, a particular legislation, a different act, or the particular act which is still in existence that has to be amended, like the 66AB, and that was already in existence, but that is not in use. When we talk about that, when certain FIR is lodged, then there is a escape route. People take a escape route, and the persons who got victim, they couldn't get remedied of that. So government of India must think of it, and public at large must be given an opportunity. There should be a debate, so that the people at large must come to know what is exactly the position of these companies, what should be the remedy, what is our right, and how we are deceived by the company. This is very important, I think so, Mr. Rashid. बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे जो लोग 10,000 रुपए ज्वाइन करने के नाम से ले लेते हैं, वो रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते हैं, और वो वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। अब जैसे आपने कहा कि इसमें FIR की जाए या सूट दाखिल किए जाए, तो जो 10,000 रुपए गहना पहना इधर से सब चीज बेच बाज के करता है, वो कैसे ये सब काम करेगा। Of course, देखिए, ये this is the human nature that everybody wants to be rich overnight, but this is not the ground reality. One has to do a lot of labor for that in order to get rich, or in order to earn money, until and unless the sweat is on our eyebrow, that couldn't give it a good result. And but the investing certain money is 1,000 rupees, 10,000 rupees, 50,000. I think a lot of that, the 5 crores would come in our hand after a week, after 2 days or 3 days. That is impossible. But most of the victims of the men who are not well acquainted with the legal education, or they don't have the acquaintances with the particular persons who could advise them in a particular way. That's why they got deceived with this company. So first of all, we must make them aware. Parallelly, I think that like channels like you must make the people aware of that, so that they could come to know that these are the cheating way. We should not go because this lead to cheat. So I must stop it now. Who would be the person who can tell them that this is not the way? You must stop it here. So I think this channel, like your channel,
is doing a very good job by making them aware of this. You don't go this way, stop it here, so that you could not become victim of that. This is my suggestion. You are doing a good job. I think this is your duty, and when the thing comes to us, I mean in the legal arena, then we will look into it, what is to be done. तो जी वकील साहब एक चीज और पूछेंगे कि चूंकि टेक्नोलॉजी भी है, क्या सरकार को इस पे स्वतः संज्ञान लेके इस तरीके की कंपनियां जो जैसे ऑन पैसिव एक कंपनी अभी बहुत पिछले 3 सालों से मार्केट में आई है सपने लेकर, और वो बताती है मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं, बट अभी एक भी प्रोडक्ट नाउ प्रेजेंट टाइम एनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसमें विदाउट लॉन्चिंग प्रोडक्ट आप सिर्फ सपना दिखा के लोगों को बेच रहे हो, तो पब्लिक, अब हम लोगों ने जो स्टिंग किया, इस पे जो आवाज उठाई कि बाकी के लोग इसमें अब ना फंसे, उसको अवेयरनेस करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए हम लोगों ने ये आवाज उठाई। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं सर आपको नहीं पता, ये आईटी कंपनी है और ये लॉन्च होगी, बस थोड़ा देर हो रही है। तो जब इतने लोग, आई मस्ट टेल यू दैट ये कंपनी लॉ बोर्ड बना हुआ है। कंपनी लॉ बोर्ड इज स्टिल certain grievance is there, we can afford the company law board. Company law board will just entertain our grievance and will remediate us, give a direction to the person, to those companies who are still doing such type of fraud. Perhaps you remember the long years back, there were financial companies like City Limousines, then Subroto Rai's company Sahara, and they were the investing companies. People were offered certain investment in those companies, the monthly investment and the quarterly investment, the weekly investment, and in return of that, just give the lollipop that you will get just your money double, triple, 5 times. But after all, what happens that after certain amount of time, the company escapes. The company didn't remain in existence, and the people have to suffer a lot. So the Supreme Court, High Court, and the Supreme Court entertained the matter. Supreme Court gave the guidance, like the chit fund frauds in the Sahara scam, like the Sahara and the Sharda scam case of the Madhya Pradesh. So just like that, I think there should be some remedy. There must court must step into it and just entertain those petitions, those representations, the people who are making to them, so that the particular persons or the group of persons would not be victim of that. I think so, because just like that, the RERA has come into existence just to look after the matters of the construction of the builders matters. Exactly. So just like that, there must be a separate body which must look into it particularly. This type of matters, it comes to it, and the people are making fraud, the company is making fraud, how to get remedy to the people and how to take action against those companies. Exactly. तो बबलू जी आपसे सवाल पूछेंगे, क्या 10,000 रुपए में आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा कंपनी कह के जो इंटरनेट के जरिए और पब्लिकली इंटरनेट बोलती है कि मैं इंटरनेट के जरिए आपको इतना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्या 10,000 रुपए में कोई भी आदमी रातों रात लखपति या करोड़पति बन सकता है? अश्विन भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी इतना चरम पर है कि हर व्यक्ति परेशान है कि 2 पैसे की आमदनी कहाँ से। आज जो माहौल है युवाओं के बीच, हर कोई चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले और मेहनत कम करना पड़े और पैसा ज्यादा मिले। इसी का फायदा उठाते हैं इस तरह के चिट फंड कंपनी वाले, जो सपने बेचते हैं और खरीदार जो है हमारे युवा उस सपनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। खुद तो फंसते ही हैं, साथ में चैन बनाने के चक्कर में अपने परिजन के, अपने रिश्तेदार के, अपने दोस्त के लोगों को भी फंसाकर उनका पैसा डुबोने का काम करते हैं। ये स्थिति बहुत ही डराने वाली है कि जैसा कि आपने बताया था कि बहुत सारे लोग फंस गए हैं। आपको दरभंगा के एक साथी ने फोन करके बताया। यही नहीं, आप तो एक 10,000 की स्कीम आ रहे हैं। मुझे तो 3 दिन पहले जानकारी मिली कि एक कंपनी जो है 1,000 या 1,100 रुपया लेता है और कहता है कि आपका अकाउंट खोलते हैं हम, आपको काम है सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखना। जी बिल्कुल, उसमें आने वाला एडवर्टीजमेंट को देखिए और 8,000, 10,000 अगर आप नीचे लोगों को आप जोड़ते हैं, चैन को बढ़ाते हैं, तो आपकी इनकम महीने की 25 से 30,000 हो सकती है।
तो हर कोई चाहता है कि 1000-1100 रुपया लगाकर अगर 10,000 की इनकम हो रहा है, अरे सिर्फ एडवर्टीजमेंट तो ही देखना है, देख लेंगे। क्योंकि हर लोग 2 महीने का इंटरनेट का पैक भरवाता है अपने मोबाइल में, सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखना है, उससे कमाई हो जाएगी तो अच्छी बात है। खुद भरते हैं, अपनी पत्नी का भी एक आईडी लगा देते हैं, अपनी चाची का नाम से आईडी लगा देते हैं, अपनी माँ के नाम से आईडी लगाते हैं। लेकिन जब वो फंसते कब है, जब कंपनी का टारगेट लाखों करोड़ों में हो जाता है, अचानक पता चलता है कि वो कंपनी रातों रात गायब हो गई। और जो शुरू में जो व्यक्ति इस कंपनी ऐसे कंपनी के साथ जुड़ते हैं, नो डाउट वो फायदे में रहते हैं, लेकिन बाद में जो लोग जुड़ते हैं वो सीधे नुकसान में पहुंचते हैं और वो अपने किस्मत में होते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और रहेगा बबलू जी आपसे कि इस जो ऑन पैसिव कंपनी है, पिछले 3 सालों से वो लॉन्च हो रही है, आप भी जानते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, इसके बारे में जाना होगा ऑन पैसिव के, और वो ये प्रोडक्ट के बारे में बोल रही है कि मैं लॉन्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है। तो क्या लोगों को अब इन पे विश्वास करना चाहिए कि ये कंपनी वाकई कोई कंपनी है या कोई एक बड़ा स्कैम है? नहीं, ये बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, भ्रम फैलाकर 2-3 सालों से पब्लिक का पैसा लेकर अपना पूंजी बना रहे हैं। और मैं पहले, जैसा कि वकील साहब ने भी कहा, कि भारत में बगैर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। आज उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है और उसके 10,000 रुपया ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। मैं भी इसके अपने स्तर पर तफ्तीश करता हूं और मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को एक पत्र भी लिखूंगा इसके खिलाफ। एक पत्र लिखूंगा कि बिहार के बहुत सारे लोग अगर इसमें फंस रहे हैं तो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मंत्रालय है वो इसकी जांच कर ले, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप, जब अस्फिक भाई आपने कहा कि बिहार के लोग फंस रहे हैं, तो बिहार के लोगों को कोई ठग के ले जाए, ये बबलू प्रकाश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भारत सरकार को लिखूंगा इस पे, और कंपनी रजिस्ट्रार को भी लिखूंगा। पहले पता तो चल जाए कि कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है भारत। बिल्कुल। अगर वो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी बगैर भारत सरकार से परमिशन लिए हुए यहाँ काम कैसे कर रहा है? अगर ऐसा है तो इसके लिए भारत सरकार भी दोषी होगी। ये बिल्कुल। बबलू जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आप लोगों के, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों में कौन सा ऐसा संदेश देना चाहते हैं, जैसी ऑन पैसिव या जा लाइफ जैसी कंपनियां बहुत सी हैं, जो इन लोगों से बचे और अपने पैसे को सुरक्षित करे? ये एक पैसा इकट्ठा करके, जिस तरीके से आपने बताया कि ये चैन बनाते हैं और चैन बनाने के बाद जो शुरू में जुड़ते हैं वो पैसा नो डाउट कमाते हैं, कंपनी कुछ प्रोडक्ट भी शुरू में लॉन्च करती है, लेकिन आखिरी में जब पैसा इकट्ठा हो जाता है और भाग जाती है। तो संदेश दे दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता के साथ पूरे देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बगैर तफ्तीश किए, बगैर जानकारी लिए इस तरह के कंपनियों के झांसे पे नहीं पड़े। अगर कोई कंपनी आपको लगती है तो आज के तारीख में गूगल पर सारी कंपनी, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो आपको गूगल बता देगा उसमें डायरेक्टर कौन है, उनका दिन संख्या क्या है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। बगैर तफ्तीश के हुए 1 रुपया भी नहीं लगाइए। नहीं बबलू जी, इस पे एक सवाल आपसे करेंगे। कंपनी में सीईओ भी है, सीएफओ भी है, सब कुछ है। बताते हैं कि इन लोग वेबिनार करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार, और वेबिनार में वही लोग जुड़ते हैं जो उनके फाउंडर होते हैं या उनके को फाउंडर होते हैं या उनके जो ज्वाइन किए होते हैं, वही लोग उस वेबिनार को ज्वाइन करते हैं। और वो उस वेबिनार को ये भी कहते हैं कि इस वेबिनार का स्क्रीनशॉट और वीडियो आप कहीं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। तो ये इसमें कंपनी का पूरा बताते हैं, लेकिन कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई लॉन्च नहीं है। नहीं, तब तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर किसी प्रोडक्ट का भारत पूरे देश में किसी भी राज्य का जनता से 1 रुपया भी लेना गुनाह है। अगर उस पैसे का आपने 2 साल तक अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो अस्फिक भाई, मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, किसी भी कंपनी को हर साल अपने एनुअल रिपोर्ट कॉर्पोरेट कंपनी रजिस्ट्रार को सौंपना होता है।
आप अगर इसको निकलवा ले किसी ऑडिटर के माध्यम से तो पता चल जाएगा कि उसको इनकम कहाँ कहाँ से हुई है और उस किस मद में कहाँ पैसा खर्च किया है। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मैं इस पे भेजूंगा, मंत्रालय भी भेजूंगा, तो इस पे आप अपने स्तर से जो भी हो सके देखिए। मैं वकील साहब को फिर एक पूछूंगा, क्योंकि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता है और आप टीवी डिबेट और इंटरव्यूज में मैंने भी देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अक्सर इंटरव्यूज में रहते हैं। ये जो ऑन पैसिव कंपनी है वकील साहब, इस ऑन पैसिव कंपनी को अगर हम डिफाइन करें कि वो ये कहते हैं कि मेरे पास इतना इतना ये प्रोडक्ट है, आपने पहले भी इसको डिफाइन किया, ये प्रोडक्ट है, उसमें पैन जीएसटी मिलेगा, पैन मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वो किसी भी सोशल मीडिया पे, शेयर मार्केट में और आपके गूगल पे कहीं इस तरीके की चीज नहीं मिलेगी, सिर्फ उनकी वेबसाइट मिलेगी और जो उनसे जुड़े हुए नीचे चैन बनाने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। तो क्या इस कंपनी को लीगलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने दी है या नहीं दी है? तो वो ये कैसे चला रहे हैं, कैसे लोगों को पैसा ऐंठ रहे हैं? और अगर हम भाग जाए तब आवाज उठाएं तो वो बेहतर है या भागने से पहले लोगों को अवेयर कर दे वो बेहतर है? Of course, before the company fully aware, we must try to make people aware of it. और जैसा कि अभी बबलू साहब ने अभी बताया कि भाई इस तरह की कंपनी के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आप लिख, यू कैन गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी रजिस्ट्रार इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड। द कंपनी हैज टू गिव ऑल इट्स डिटेल्स टू द कंपनी रजिस्ट्रार एंड द कंपनी लॉ बोर्ड will take action against it. You will get information. If the information is not given and published to you, you may just use the RTI, and through RTI you can get information. And I am not confining my opinion and argument or whatever you may call it to the particular on passive company, but all the companies who are parallel to this, who are on the same footing, we must take action against them. We must go ahead. We must do something for the benefit of the general mass so that people should not be cheated. So far as the action is concerned, though the action is not in our hand, but the steps we can take so that the concerned authorities would take action against such companies who are making such type of fraud to the people. Please give me the one message on my subscriber and all the Indians peoples के जो इसमें फंसे हुए हैं या जो अब फंसने से बचे उनके लिए एक मैसेज। In one line message, I must say that we should not believe on luck. We must believe on our labor. हमें अपने श्रम पे विश्वास करना चाहिए, अपनी किस्मत पे नहीं। ये किस्मत का पासा नहीं है कि आपने ओवरनाइट हमको रिच बना दिया। That you will always be deceived if you just think of it. हमको अपने श्रम पे, अपने मेहनत पे, अपने लेबर पे, one must be industrious. So of course our destiny is there. Destiny is not everything, but destiny is something. So first of all, we must do some labor. You know, this is not the thing we must spend 1,000 rupees and we just sleep and think of it overnight. We will become rich. We will get 1 crore rupees in our hand tomorrow morning. Exactly, this is not exactly. This is the ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बबलू प्रकाश जी आपका आने का। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवाद हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने अपना बहुत कीमती, आप बहुत बिजी रहते हैं कोर्ट के कामों से और आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी धन्यवाद, आपके चैनल को और आपके व्यूअर को अभिनंदन। जनता की आवाज बनकर हम आपके पास ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे कि ऐसी कंपनियों से बचें और अपने पैसे को सेव करके बचाएं। रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज आप जनता तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।